Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 11th history chapter the three orders. My dear student, in this chapter, what we read today, the topic monks, nun, and friars. No doubt to say that they were religious group. They were religious group. They were different from church and priest. Their practices was different from किसके? चर्च के, जो चर्च में होती थी उससे डिफरेंट थे. And about the monks and nuns, and also we had discussed in our previous class the friars. We will discuss about the special quality of the monks. How can monks different from the priest? Priest से कैसे वो different थे? And monks से friar कैसे different थे? What is differentiation between the monks and friars? And this is the very strange matter that none also include the religious group after some time. हमने यहाँ एक चीज और देखा. हमने इन चीजों पे विस्तार से बातें की और फिर हमने आपसे कहा कि इनके अपने वर्क के आधार पर, इनके फंक्शंस के आधार पर, इनके अपने प्रैक्टिसेस के आधार पर, अगर इन तीनों के फंक्शंस, इनकी अपनी प्रैक्टिस, इनके अपने फंक्शंस, इनके अपने प्रैक्टिसेस के आधार पर देखें तो हमें कुछ बदलाव, कुछ चेंज दिखेगा. क्या बदलाव, क्या चीज? अब इन चीजों पे हम विस्तार से देखते हैं. जैसे मॉन्क्स को मैंने कहा था कि दे वर सिमिलर टू प्रीस्ट. They couldn't have married. First, they lived in where? They lived in monastery. And they also prayed. They also prayed for God. They also prayed. किसके लिए? किसकी प्रे करते थे? गॉड की प्रे करते थे. तो इन चीजों को हम लोगों ने मॉन्क्स के बारे में देखा. अब हमने नन के बारे में क्या देखा? नन्स, according to Christian mythology, women had no right to become a priest. Women priest नहीं बन सकती थी. लेकिन after developing phase, after the reform, I mean to say that reform of the Christianity, we had seen that the special category of women, they involve that धर्म से जुड़ गई, और जो धर्म से जुड़ी वो नन है. नन, अब नन जो थी वो क्या करती थी? नन आल्सो दे सर्व
आई मीन टू से दैट वेयर दे सर्व सेवा करती थी, दे आल्सो प्रेड, they also pray, and gradually we had seen that the total changes in the condition of women, they after some time the group monastery established schools, hospitals, and other social reform activities डन बाय, तो नन वहां पे भी हुआ। तो ये जो चेंजेस बदलाव हो रहे हैं, और वन मोर थिंग्स, फ्रायर्स, फ्रायर्स क्या थे? फ्रायर्स वो थे, अब यहाँ पे मैंने कहा था कि मॉन्क्स कहाँ रहते थे? मोनेस्ट्री में रहते थे। मॉन्क्स मोनेस्ट्री में रहते थे, लेकिन फ्रायर्स दे डिडंट लिव in monastery. They wandered one place to other place. One place to other place. एक जगह से दूसरी जगह ये लोग घूमते रहते थे, उपदेश देने। तो ये पूरा का पूरा सेंस, ये पूरा का पूरा सिनेरियो हम लोगों ने जो पढ़ा, उससे क्रिश्चियन सोसाइटी, क्लर्जी क्लास के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिली। आई थिंक दीज आर ऑल पॉइंट्स वी हैड डिस्कस इन माय प्रीवियस वीडियो। पुराने वीडियो में हमने इन सारी चीजों के बारे में विस्तार से बातें की थी, जहां पे हमने देखा था कि क्लर्जी, द फर्स्ट ऑर्डर, इन द फर्स्ट ऑर्डर देयर वाज द मेन रोल ऑफ पोप, पोप हु कंट्रोल्ड द होल चर्च, हु लिव्ड इन वन प्लेस, he supervised all religious rituals, he practiced also. He appointed the various priests in the different churches, cathedrals. Then after, the role of priest. The role of priest is also very important for the religious purpose of the Christian people. In the church, all the rituals that had completed by the priest. Here one more thing which is very important, which I want to discuss with you. What? Ki in Christianity, in the Catholic Church, female have no right to become a priest. महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था कि वो priest बन सके। But after reform in Christianity, we had found that the nuns, a group of women, they involve herself for religious work, and two other groups which we see, they were monks and nuns. Monks, they completely devoted and dedicated towards the Christianity, towards their religion. They prayed for God. They tried to help the common people for the religious purpose. Monks lived in monasteries. None also lived in monastery. It is very strange matter and important also
that monks and nuns, they lived in separate monasteries. They not lived each other. I mean to say that in one monastery, monks and nuns, they didn't live. नहीं रहते थे. And as far as the matter of friars, they were also the religious group. They were like monks. Friars, for the religious purpose, for the sermon, for the preaching the common people, they moved one place to other place. And it is the very important things which I had already discussed you in your previous class. क्या हमने कुछ बातों पे बात की. हमने कहा था कि ये फ्रायर्स कैसे थे. आइए उन पे देखते हैं. फ्रायर्स पे थोड़ा सा ध्यान देंगे. और इन माय लास्ट क्लास व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट द फ्रायर्स, मैंने कहा था हिल्डेगार्ड वाज द फर्स्ट स्टार्टेड द हाइम्स. एक म्यूजिशियन था, लेकिन उसने चर्च को एक नए स्वरूप, एक नई भाषा, एक नए रूप में उसने दिया. आपने चर्च में गायन सुना होगा, बेल बजती है और चर्च में रिलीजियस सॉन्ग गाए जाते हैं. ये गाना पहली बार शुरू किसने किया? दीज टाइप ऑफ सॉन्ग्स स्टार्टेड बाय हिल्डेगार्ड. ये हिल्डेगार्ड ही था जिसने इस तरह की पहली बार व्यवस्था की. कौन था भाई? इंपॉर्टेंट थिंग्स मैंने बात की. मैं फ्रायर्स को बात कर रहा हूं. पहली चीज, फ्रायर्स दे not lived in church or monastery. फ्रायर्स चर्च में नहीं रहते थे, फ्रायर्स मोनेस्ट्री में नहीं रहते थे. They move for preachings, sermons. उपदेश देने के लिए ये लोग एक जगह से दूसरी जगह तक मूव किए करते थे. अगर आप बुक देखें तो कहता है from small communities of the 10 to 20 men, women's monasteries grew to the communities often of the several hundred. With the large buildings, they contributed to the development of the arts. Abbess Hildegard Abbess Hildegard was a gifted musician. He was gifted musician. क्या था ये? एक म्यूजिशियंस था. ही वॉज गिफ्टेड म्यूजिशियन. एक भगवान के द्वारा प्रदत्त क्या था? एक म्यूजिशियन था. ही वॉज गिफ्टेड म्यूजिशियंस एंड डिड मच टू डेवलप व्हाट द प्रैक्टिसेस ऑफ कम्युनिटी सिंगिंग ऑफ प्रेयर्स. क्या कहते हैं? प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिटी सिंगिंग ऑफ प्रेयर्स. इसने क्या किया?
इसने एक एक व्यवस्था शुरू की, क्या, प्रेयर्स को गाने की। कहते प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिटी सिंगिंग ऑफ प्रेयर्स इन चर्च फ्रॉम द 13th century. Prayers in church from 13th century में हिल्डेगार्ड वो पहला व्यक्ति था जिसने गायन शुरू किया, गीत के रूप में जो चर्च में गाए जाते हैं प्रेयर्स, वो व्यवस्था उसने शुरू की। सो इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू व्हेन यू विल ट्राई टू राइट अबाउट द monks, men and friars. You have to mention the name of Hildegard. The role of Hildegard was very much important because he was started the singing hymns, singing prayers in church during 13th century. 13th century में ये वो व्यक्ति था जिसने गायन की प्रथा शुरू की, गायन की प्रथा स्टार्ट किया, और यहां से एक नई सिस्टम शुरू हुई। कहता है कि फ्रॉम द 13th century some groups of monks called friars, कहते choose preaching to the people living in the earth. कहता है by the 14th century there was a growing the uncertainty about the value of the purpose of the what monasticism in England. The Langlands poem, the pious, the plowman, 1460 to 70, the constructed, the ease and the luxury of the lives of the some monks with the pure faith of the simple plowman and the shepherds and the poor common laborers. Also in England, the Cushers wrote the Canterbury Tales, see the patriots of the nun and monks and friars. अब यहाँ पे एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है जिसकी बात कहता है कि 14th century तक आते आते जो मोनेस्ट्री का इंपॉर्टेंस था, मोनेस्ट्री के जो एम थे, उसके बारे में कुछ शंकाएं व्याप्त होने लगी। इट मीन्स 14th century तक आते आते 14th century तक आते आते मॉन्क्स, नन और मोनेस्ट्री पर लोगों की सोच बदलने लगी। कुछ संदेह हुआ लोगों को। क्या संदेह था? तो कहता है कि ये वो समय था इंग्लैंड में लैंगलैंड्स की कविता जिसमें पियर्स प्लाउमैन, इंग्लैंड में लैंगलैंड्स की कविता, इंग्लैंड लैंगलैंड्स पोएम इन इंग्लैंड, इसमें वो कुछ बातें कहता है। किस चीज की? ये कविता है पियर्स प्लाउमैन, पियर्स प्लाउमैन। इस पोएम में पियर्स प्लाउमैन में कुछ मॉन्क्स के आरामदायक एवं विलासतापूर्ण जीवन की साधारण कृषक जो शेफर्ड थे और गरीब मजदूर के विशुद्ध विश्वास से तुलना की गई है। मतलब क्या गया है कि अब मॉन्क्स, इस पोएम में कैटेगराइजेशन किया गया है कि मॉन्क्स एंड कॉमन पीपुल like peasants,
शेफर्ड एंड क्लेवर्स। कहता है ये वर्ग और ये लोग, कहता है एक मॉन्क्स है जो विलासितापूर्ण जीवन जी रहा है, और एक ये कामन वर्ग है जो इतनी मेहनत कर रहा है, इतना प्योर लाइफ जी रहा है। तो एक के साथ प्योरिटी जुड़ रही है और एक के साथ करप्ट एक्टिविटीज जुड़ने शुरू हुए। तो एक तरीके से रिलीजन में करप्शन की बात कर रहा है प्लाउमैन। वो कहता है कि अब समय 14वीं सेंचुरी तक आते आते जो मॉन्क्स की लाइफ थी वो बदल गई। अब मॉन्क्स जो थे वो अपने जीवन को ग्लैमरस वे से जीने लगे। आई मीन टू से दैट द ऑथर ऑफ द पोएट ऑफ द पियर्स प्लाउमैन, द लैंगलैंड्स, he clearly explained about that the life of monks that became glamorous. They had gone in the war. Which path? The corrupt path. Corrupt way. वो गलत तरीके से जा रहे हैं, वो दूषित हो रहे हैं। Plowmen, workers, peasants, and the common people who did hard work for their life is sacred than that. उनका जीवन उनसे ज्यादा पवित्र है। ये बात वो कहता है इंग्लैंड में भी चासर ने कैंटरबरी टेल्स लिखी। चासर के कैंटरबरी टेल्स में जो नन थी और जो मॉन्क्स थे और जो फ्रायर थे उनका हास्यास्पद चित्रण किया गया है। यहाँ पे जो चासर की बुक आई इंग्लैंड में, चासर ऑथर है, ये पोएट है। इसमें चासर ने लिखा किसके बारे में? अपनी बुक, अपनी कविता, उसकी बुक का नाम है द कैंटरबरी। कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स में चासर लिखता है किसके बारे में? दो लोगों के हास्यास्पद चरित्र के बारे में। किसके? सॉरी, तीनों के बारे में। मॉन्क्स, नन और फ्रायर्स। इन तीनों की लाइफ का एक विचित्र वर्णन करता है चासर अपनी इस पुस्तक में। कहने का सेंस क्या है? व्हाट आई वांट टू इन्फॉर्म यू माय डियर, आई वांट टू इन्फॉर्म अबाउट दैट द मॉन्क्स लाइफ दैट वाज बेस्ड ऑन sacrifices, that was based on purity, that was based on the simplicity. But what happened with them? After some time, we had seen the life of these type of peoples that had totally changed, बदल गया। अब वो ग्लैमरस लाइफ की तरफ बढ़ गए थे। उनका जीवन एक नए दिशा में आगे बढ़ रहा था और यहाँ से पूरी व्यवस्था ही चेंज हो रही थी, जिसका वर्णन कंटेम्प्रेरी जो ऑथर्स थे, कंटेम्प्रेरी जो पोएट्स थे, उन्होंने किया। वी हैव डिस्कस्ड द टू बुक्स, द टू पोएम्स। फर्स्ट पोएम द लैंगलैंड्स पोएम इन इंग्लैंड, द पियर्स प्लाउमैन, एक जो बुक थी जिसकी बात हमने की। हमने कहा कि लैंगलैंड्स की जो एक किताब लैंगलैंड में लिखा पियर्स प्लाउमैन में जो बातें वो कह रहा था, और
दूसरी मैंने बात किया चासर की बुक कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स में तो उसने मॉन्क्स, नन और फ्रायर्स तीनों की लाइफ की एक्चुअल कंडीशन को शो किया। ओनली इन 100 years द टोटल सीनियर दैट हैज चेंज, पूरा का पूरा बदलाव दिखाई देता है। और ये बदलाव, ये चीजें कहीं ना कहीं क्रिश्चियन सोसाइटी के चीजों पे क्वेश्चन उठाती थी। ये एक प्रश्न था कि किस तरीके से क्रिश्चियनिटी, किस तरीके से ये समाज किधर की तरफ आमुख हो रहा है, किधर की तरफ बढ़ रहा है। एक उस दिशा में बढ़ रहा है जो रिलीजियस करप्शन की ओर जाता है। I want to tell you that no doubt their aim was very sacred. No doubt these type of institutions developed for the welfare of the religion and welfare of the common people. But what happened? These monks, nuns and friars, these are the anti-reactions, or these are the reaction against the priest and their blameless life, church and their blameless life. You have remembered that I told you that the church, it was the powerful institutions. They had their own land. The bishops, they treated himself as nobles. And without any hesitation, you can say that without any hesitation, you can say that church day by day their whole practices depend on the prosperity, not the simplicity. Depend on the money. I mean to say that कि कितना समृद्ध है, कौन है, इससे मतलब होने लगा। अब वो धर्म के रूप में नहीं था, अब एक पावरफुल संस्था के रूप में था। I hope you have remembered that I told you about that. What? कि मैंने आपसे कहा था कि किस तरीके से चर्च ने अपने पूरे स्वरूप को बदल दिया। चर्च ने वो सारी चीजें धीरे धीरे अडॉप्ट करने लगी जो नोबिलिटी में प्रैक्टिस हो रही थी, जो वैसलेज में थी। जैसे मैंने व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट दैट द वर्ड गॉड, एक शब्द मैंने बात की थी, मैंने कहा था गॉड, ये वर्ड किसके लिए करते थे? लॉर्ड। क्या हुआ? ये लॉर्ड और गॉड एज इट इज अडॉप्ट कर लिया गया चर्च के द्वारा, और यहां से चर्च में शुरू हो रहे एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस हमें दिखाई देने लगते हैं। तो इसके आधार पे एक चीज क्लियर हो रही है कि धर्म का विकास तो हो रहा है, जो धर्म 4th century से शुरू हुई थी। आई होप यू रिमेंबर दैट द Christianity became official language, official religion of Rome, of Roman Empire. During 4th century AD, तो यहां से 4th century से डेवलपमेंट 9th century to 13th century, यहां तक के सोशल और रिलीजियस कंडीशंस पे हमने बात की, हम लोगों ने देखा। और सोसाइटी की जिस कैटेगराइजेशन की हमने बात की, मैंने कहा था जब सोसाइटी सोशल कैटेगराइजेशन करेंगे हम, तो सोशल कैटेगराइजेशन
में एटलीस्ट क्लर्जी, नोबिलिटी एंड पेजेंट्री को जब बात करेंगे तो यहां पे हम एटलीस्ट मिड 11वीं सेंचुरी को आधार बना सकते हैं। तो इन सारी बातों पे हम लोगों ने बात की थी, इन सारी चीजों को फैक्ट टू फैक्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो वो धर्म जो तेजी से चला, इतना पुराना 4th सेंचुरी का, नो डाउट इट वाज द वेरी गुड रिलीजन, बट विदाउट एनी एजिटेशन यू कैन से दैट टाइम टू टाइम द धर्म, आई मीन टू से दैट रिलीजन, क्या हुआ, कुछ लोगों के द्वारा, कुछ ऐसे अनैतिक लोग जो अपने लाभ और अपने हित के लिए देखते थे, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को एक दूसरे स्वरूप में डाल दिया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, चर्च एंड सोसाइटी। गुड बाय एंड टेक केयर।